1 minute is the 1 upon 60th part of 1 degree. Now next is 1 second. 1 second. अब ये जो 1 मिनट है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स. अब ये सपोज 1 मिनट, हाँ 1 मिनट जो हमने डेफिनेशन लिखा है उसका नोटेशन नहीं लिखा है. 1 मिनट के डेफिनेशन क्या है? 1 अपॉन 60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री एंड इट इज डिनोटेड बाय, ये 1 लिखोगे और रेज़ टू पावर में क्या लिखोगे? एक डैश दोगे आप. तो उसका मीनिंग क्या है कि इसको कैसे पढ़ेंगे हम? 1 मिनट. ठीक है. डिग्री के लिए क्या रहता है? रेज़ टू पावर में 0 रहता है. 1 मिनट के लिए रेज़ टू पावर में क्या रहता है? 1 रहता है. नाउ 1 सेकंड. अब ये 1 मिनट है, ये 1 मिनट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स. उसमें से एक पार्ट जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? 1 सेकंड. सो 1 सेकंड मीन्स 1 अपॉन 60th part of 1 minute. 1 मिनट का 1 अपॉन 60th पार्ट को हम क्या कहेंगे? 1 सेकंड. एंड 1 सेकंड इज डिनोटेड बाय 1 रेज़ टू पावर, यहां पर 2 डैश देंगे. तो समझ में आया? ये जो हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम है इसको डिग्री मेजर बोलते हैं. उसमें सबसे पहले 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स और फिर ऐसे टोटल 360 पार्ट्स हो गए. उसमें से एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री? 1 अपॉन 360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ टर्मिनल रे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. फिर 1 डिग्री भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. उसमें से एक पार्ट को हम बोलेंगे 1 मिनट. इट इज डिनोटेड बाय 1 रेज़ टू पावर, ये एक डैश रहेगा, उसको पढ़ते टाइम 1 मिनट पढ़ेंगे. और 1 मिनट के अंदर भी कितने लाइंस है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? अगेन 60 इक्वल पार्ट्स में. तो उसमें से एक पार्ट को हम बोलेंगे 1 सेकंड. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सिस्टम, sexagesimal system. It means it is the degree measure. Now another method of angle measurement is centesimal system. It is the French system. Previously we had studied about the degree measure, means sexagesimal system, that was the English system. Now the next is the centesimal system. In this system, one right angle is divided into 100 grades, and one right angle means it is the 100 grade which is denoted as 100 raised to power g. So therefore 1 grade is equal to 100 raised to power single dash. Single dash means क्या रहेगा ये? It is minute. So 1 grade is equal to 100 minute and 1 minute is equal to 100 second. So in this system, one right angle is divided into 100 grades, or we can say that it is the 100 parts also we can say. Whereas in previous system, it was divided into the 90 equal parts. So this is another method of angle measurement. But generally we will use the first method and the third method, a third system. It is not useful for the problems which we will solve in the exercise. The first and third method is important. The third system, it is the circular system. We also called it as a radian measure. This system is very important. Now in this system, the name says that it is a circular system, so we need a circle to define the 1 radian. 1 radian को डिफाइन करने के लिए हमको सर्कल की जरूरत पड़ेगी. हम पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे. So we will consider this as a initial ray or initial arm OA, and OB is the terminal ray or terminal arm. Now this OA and OB,
they are also the radius of the circle. So OA क्या है, इनिशियल आर्म है और OB टर्मिनल आर्म. इसी को ये दिस एंगल्स intersect, these rays intersect the circle at the point A and B. That is why we say that this angle AOB is the central angle. Central angle means it is the angle subtended at the center of the circle. That is why we called it as central angle. Now this is the radius which is denoted by R. And this AB is called the minor arc of the circle. इस AB को हम क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक, it is the minor arc of the circle. और यहां पर जो एंगल फॉर्म होगा ये 1 रेडियन का कब होगा, this angle is of 1 radian if the radius of the circle is equal to the length of arc. It means OA R है, means radius है, तो AB भी कितना होना चाहिए, R होना चाहिए. AB is not the radius but its value must be, जो रेडियस की वैल्यू रहेगी वही किसकी वैल्यू रहेगी, लेंथ ऑफ आर्क की रहेगी. तब जो एंगल फॉर्म होगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ 1 रेडियन. सो 1 रेडियन इज डिनोटेड बाय 1 raised to power c. ठीक है. और 1 रेडियन क्या है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो. इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द आर्क. ये एंगल कौन फॉर्म कर रहा, बाय द आर्क, सच दैट ये तीनों इक्वल होना चाहिए. तो रेडियस है ये तो सेम रहेगी. फॉर एग्जाम्पल ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ये भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए. ये दो तो हमेशा सेम रहेंगे, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर के जगह पर अगर 5 सेंटीमीटर आएगी तो अब जाके यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा तो वो 1 रेडियन का नहीं कहलाएगा. उसके लिए क्या कंडीशन है, द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. ये तीनों सेम आनी चाहिए. सपोज 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आ गए, तब जाके हम क्या बोलेंगे, जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा वो एंगल 1 रेडियन का होगा. So what is the definition? 1 radian is the angle subtended at the center of the circle by the arc such that the radius of the circle is equal to the length of arc. Now 1 radian is denoted by, ये लिखा आपने. अब इंटर रिलेशन होना चाहिए. जैसे आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है. तो किलोमीटर एज वेल एज मीटर बोथ आर द यूनिट्स. ये दोनों भी यूनिट्स है. किसके यूनिट्स है, लेंथ के. आप लेंथ मेजर कर सकते हो इससे. तो दोनों का इंटर रिलेशन है, तो आप एक का कन्वर्जन दूसरे में कर सकते हो. ऐसे अभी हमको पढ़ना है कि डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, इनका क्या रिलेशन है. तो यू मस्ट नो दैट रिलेशन. 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन. क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है. तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, सो पाई अपॉन 180 रेडियन. अब पाई मीन्स यहां पर इट इज द इरेशनल नंबर whose approximate value, वो जो है रेडियन में अलग वैल्यू है, डिग्री में अलग वैल्यू है उसकी. तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना याद रखो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, क्योंकि रेडियन में जो रहेगा एंगल्स वो पाई के फॉर्म में ही लिख सकते हैं हम. और उसका अगर कन्वर्जन बोला है तो इफ द वैल्यूज इज गिवन, तब आप उसकी वैल्यू पुट करोगे 22/7 और बाद में वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो. तो अभी हम थोड़े बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जो कि स्टैंडर्ड एंगल है. स्टैंडर्ड एंगल मींस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री 45 डिग्री, अभी आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे. इट इज नॉट डिफरेंट. तो उसकी वैल्यू है साइन 30 डिग्री की.
तो आपको पता है लोअर क्लास में आपने लर्न की है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, इट इज 1/2। लेकिन अभी डिग्री, क्योंकि उस टाइम आपको सिर्फ एक ही एंगल मेजरमेंट का यूनिट पता था डिग्री, अभी आपको रेडियन के बारे में ही है। अब रेडियन, ये रेडियन मेजर मींस सर्कुलर सिस्टम में रेडियन मेजर होता है, ये भी अभी पता है आपको। तो आपको 30 डिग्री नहीं पूछा जाएगा, 30 डिग्री मीन्स कितना रेडियन है और फिर वो साइन दैट रेडियन। लेकिन उसके पहले आपको कुछ स्टैंडर्ड एंगल में, स्टैंडर्ड एंगल का कन्वर्जन करना पड़ेगा, किसमें, रेडियन में करना है। तो मैं बेसिक प्रॉब्लम ले रहा हूं कि वी विल कन्वर्ट सम एंगल्स इनटू डिग्री। तो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ठीक है, इसका कन्वर्जन मुझे करना है रेडियन में। 30 डिग्री का कन्वर्जन किस में करना है, रेडियन में। तो कैसे करेंगे बताओ, 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब टू कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन हम क्या करेंगे, गिवन डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 30 इंटू पाई अपॉन 180, ये किस में आ जाएगा, रेडियन में। इट मीन्स टू कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन मल्टीप्लाइड इट बाय पाई अपॉन 180। अब इसको आप रिड्यूस करो, ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, सो पाई अपॉन 6 रेडियन। सो 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई अपॉन 6 रेडियन। ये आपको लर्न करना है। और एक निकाल के दे रहा हूं मैं, सेकंड 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री मीन्स कितना रेडियन रहेगा बताओ आप, 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 इंटू, किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिग्री का कन्वर्जन किस में करना है आपको, रेडियन में। सो पाई अपॉन 180 रेडियन। अब इसको आप रिड्यूस करोगे तो ये 45 4 हो जाएगा 180, सो पाई अपॉन 4 रेडियन। सो 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 4 रेडियन। तो जो स्टैंडर्ड एंगल है उस सभी स्टैंडर्ड एंगल का आपको कन्वर्जन करना है। अब कुछ स्टैंडर्ड एंगल का कन्वर्जन ये आपको करना है, मैं लिख रहा हूं, इट इज द होमवर्क। तो आपको ये करके बताओगे। तो ये 30 और 45 करके दिया मैंने। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू डू, राइट डाउन 60 डिग्री फोर्थ, 90 डिग्री फिफ्थ, 120, then 6, 180, 7th, 270, 360. All these are the standard angles. ठीक है, तो ये इसका आपको कन्वर्जन करना है, ठीक है, दैट्स ऑल।